Hey guys, what's up? So welcome back to my channel Crack UPSC with Anshika. So in this video we are going to cover quick revision module of polity which has been released by Vision IS. This module is so effective for your comprehensive coverage of polity. In this module you can find each and every topic covered important for prelims examination. So that is why I have taken an initiative and I am helping you revise this module quickly before prelims examination. So if you're liking this initiative of mine, so please like, subscribe and share my channel as much as possible. So without any further delay, I would like to start the video. So let's first see the syllabus. So this is the index given here. You can say there are so many topics, but today we are going to cover the starting four topics, okay? Because if I make the videos so long, then you guys will get bored watching that. So that's why I'm thinking that I will cover it on different parts and sections. So let's move further, okay? So this is the first topic what we have to cover today. Okay, so polity, basic polity concept. So let's see the concept. So there are some list of topics. Okay, just be aware that these topics we have to cover in this PDF, and there they have summarized the topic here. Okay, so constitutionalism, feature of the constitution, federalism, political doctrines, majority and its application, political theories. So we are going to study these topics in this basic polity concept. Okay, so let's move. Uh, so the first topic is constitution and constitutionalism. So we are going to see the differences between them. Okay, what is constitution? Constitution is a legal document that is fundamental law of the country, having special sanctity. You can say constitution एक written document होता है. You can say it can be written or unwritten both, but the written one reflect ideology and philosophy of the nation. और इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री. तो इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है, हैविंग स्पेशल सैंक्टिटी. ओके, और मोस्टली कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द नेशन. ओके, एंड सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट्स लिटरली opposite to the definition of constitution. Constitutionalism is something that prevent the power, or that put some specific limitations on general state powers. You can even read the definition. So constitutionalism is specific limitations on general state powers to prevent the exercise of arbitrary decision making. तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, सो इसमें क्या है कि स्टेट जो है वो कुछ ऐसी आर्बिट्रेरीनेस पावर यूज़ ना कर पाए, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं. तो बेसिकली दैट इज़, और इसमें एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं क्या होता है. तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है. So that puts some limitations on the power of the on the exercising power by the states or center. तो ये जो जहाँ पर भी हम limitations देखते हैं, जो चीज़ें limitation लगा रही हैं, अगर आप एक arbitrariness में power को use नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें होती हैं constitutionalism के अंदर. Basically यही definition show करती है. Okay, the third thing is constitutional morality. You can say constitutional morality is a steadfast adherence to values and principles enshrined in the Constitution of India. तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये होती है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हें हमें ना रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल करना चाहिए. ठीक है, तो दैट शुड नॉट ओनली इन लेटर, दैट शुड नॉट ओनली बी इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट. ओके, तो रियल लाइफ में भी आप उसको समझो, बेसिकली वो लॉ क्या कह रहा है, आप उसको वाइड इंटरप्रिटेशन दो. ठीक है, तो ये चीज़ें कह रहा है कि आप उसे लाइक यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर स्पिरिट. ओके, so the fourth thing is concept of rule of law. Okay, so this particular term rule of law was given by A.V. Dicey, and he's a very famous you can say a person who has given this term. So इन्होंने क्या कहा था, A.V. डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को कैसे दिया है. उन्होंने कहा है सबसे पहली चीज़ तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. सेकंड क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. थर्ड क्या होता है, इंडिविजुअल लिबर्टीज. ओके, सो इंडिविजुअल की लिबर्टी हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज आर्टिकल 14 of the constitution, and absence of arbitrary power. Okay, so these things are very important. Okay, तो ये definition है, छोटे छोटे differences हैं, but we have to keep it remember so that we can use these things wisely at the time of examination. Okay, और उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पर सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन को एक मतलब वैलिड डेफिनेशन माना है कौन कौन से केसेस में, रामेश्वर प्रसाद केस एंड आयर कोहिलो केस। ओके, तो उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म abhors absolutism. Okay, it is premised on the rule of law in which the subjective satisfaction is substituted by objectivity provided by the constitution itself. तो एब्सोल्यूटिज्म मतलब ये होता है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने क्या है कि इस चीज़ को वैलिड माना है कि दैट देयर शुड द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म in the governance system. Okay, so these are the things. And then second case is IR कोइलो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन को वैलिड माना है। इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट रिक्वायर कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स शैल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो ये डेफिनेशन से समझ में आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये है। अब देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय पब्लिक थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू यू नो इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, तो उसे होता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, यहाँ पर रूलर होता है रूलर होता है। रूल ऑफ द कंट्री हैज़ अनलिमिटेड पावर्स। तो यहाँ पर देखिए हेड ऑफ द स्टेट लाइक प्रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, ऑब्वियस है। एंड यहाँ पर रूलर ऑफ द कंट्री हैज़ अनलिमिटेड पावर्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अब स्पेसिफिक टेन्योर होता है फॉर द रूलर। ओके, एंड यहाँ पर नो रूलिंग लिमिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, यहाँ पर क्या होता है, ब्रूनेई, कतर, स्वाजीलैंड। तो यही सारी डेफिनेशंस हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, और उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब रिटन एंड अनरिटन के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो रिटन जो है फाउंड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटी लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ड्यूटी, दिस इज ड्यूली कोडिफाइड, मतलब प्रॉपर कोडिफाइड होता है। ठीक है, ये लिखा होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है, पता होता है, ड्यूली कोडिफाइड होता है, प्रिसाइज होता है, डेफिनेट होता है, सिस्टमैटिक होता है, कैन बी फ्लेक्सिबल, रिजिड और बोथ। ठीक है, रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स। एग्जाम्पल की बात करें, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा, इवन श्रीलंका। तो ये सारी ना डेमोक्रेटिक, देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज विच आर डेमोक्रेटिक। मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेड होता है बट नॉट ड्यूली कोडिफाइड। ओके, तो ये बढ़िया, मतलब वैसे कोडिफाइड नहीं होता, तो दे आर स्कैटर्ड। ओके, तो थ्रू सम जजमेंट और एक्सेट्रा ये आते हैं, और ड्यूली कोडिफाइड नहीं होते। ओके, तो दिस इज द डिफरेंट शेडिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू। ओके, अब ये क्या है, अब यहाँ पर प्रिसाइज, डेफिनेट एंड सिस्टमैटिक था, ये अनसिस्टमैटिक है, इनडेफिनेट है एंड इम्प्रिसाइज है। ओके, और दिस इज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जो भी हुए उनके रिजल्ट्स हैं ये। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, now we'll talk about forms of government. So forms of government, presidential system of government की बात करें तो is the one in which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts, so which is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. Presidential में क्या है कि like we know that there are two forms of government, presidential and parliamentary. तो parliamentary जो होती है उसमें collective responsibility होती है, जो presidential form of government होती है उसमें executive is not responsible to the legislature. सबसे पहले तो आप तीन चीज़ें समझ लो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स आर योर। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और जुडिशरी में पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दीज थिंग्स आर जुडिशरी। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन, मतलब दोनों में क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन होता है। दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये एक दूसरे का पार्ट नहीं होती, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर गवर्नमेंट फॉल होती है, गवर्नमेंट गिरती है, तो वहाँ पर सभी को रिज़ाइन करना पड़ता है, सारे एमपीज़ को, तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल में दोनों में ये डिफरेंस है। अब यहाँ देख लेते हैं फीचर की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर एग्जांपल यूएसए में, और पार्लियामेंट्री इंडिया, यूके।
ओके। सो यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ रियल एंड नॉमिनल जस्ट वन एंड रियल एंड नॉमिनल। ओके, तो इसमें लिखा है सिंगल एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल जस्ट वन, या तो रियल होता है या तो नॉमिनल होता है। यहाँ पर रियल एंड नॉमिनल दोनों होते हैं। यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, आर्टिकल 74 एंड 75। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पर पावर सेपरेटेड है, लाइक वी हैव सबसे पहले यूनियन होता है, फिर यहाँ पर स्टेट्स हो गए, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, तो ऐसे होता है। मतलब ये एक पावर सेपरेशन ऑफ पावर है। और यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, नॉट नेसेसरी, मतलब नेसेसरी नहीं है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो, बट ठीक है, होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, मतलब सब होमोजेनिटी, मतलब दे आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, मतलब पॉलिटिकल जो भी फिनोमिनन्स होते हैं, मतलब यहाँ कह सकते हैं पॉलिटिकल जो भी पार्टीज वगैरह होती हैं उनके बारे में। लोअर हाउस की बात करें तो हैज़ अ फिक्स टर्म, लोअर हाउस का फिक्स टर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंशियल होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, मतलब यहाँ पर पता है ना, तो एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो अगर मतलब एक को रिज़ाइन करना पड़े तो ऐसा तो है नहीं पूरी पार्टी रिज़ाइन कर देगी, तो गवर्नमेंट जो है स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेबल नहीं होती, यहाँ पर मोर अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टेबल फीचर्स यहाँ पर नहीं है। अम्बेडकर जी ने जस्टिफाई किया था इसको फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा कन्फ्लिक्ट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इन इंडिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन शॉर्ट, by Indian Constitution, which was adopted by Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950. So the Constitution lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedure, powers, duties of the government institution, and sets out fundamental right, directive principle, and duties of the citizen. So they are not talking in that, they are basically trying to कि जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई थी, लाइक ये 26 नवंबर को, मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ये सारी बातें ये कह रहे हैं बेसिकली, देयर इज नथिंग टू लर्न हियर, ओके। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दिस इज अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, ओके, एंड दिस इज लेंथीएस्ट काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा है, ठीक है। 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, ओके। इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, एक कंट्री से नहीं लिया गया, देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर दे हैव बोरोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, ओके। सो यूएसए से लिया फंडामेंटल राइट, यूके से पार्लियामेंट्री फीचर्स लिया हुआ है, तो ऐसे देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। डीपीएसपी कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अमेंडमेंट किससे होता है? स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी, देयर आर लॉट, इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, ठीक है, ये सब होता है। अब फेडरल सिस्टम की बात करें तो विद फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस, मतलब कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं और साथ में फेडरल फीचर्स तो है ही। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। देखो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी भी है, मतलब दोनों एक दूसरे से कोई सुप्रीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल की सुप्रीमेसी है, ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो दोनों के लॉ जहाँ पर कन्फ्लिक्ट करते हैं वहाँ पर प्रिवेल करती है मोस्टली जुडिशरी, बिकॉज दैट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हु इज़ सुप्रीम? Constitution is supreme. You cannot say that parliament is supreme and judiciary is supreme. Constitution is supreme. So this is the best thing I think India has adopted. So okay, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 to 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 36 to 51 आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। सेकुलर स्टेट 25 to 30। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आर्टिकल 326, ओके। सिंगल सिटीजनशिप, ओके, सो 5 to 11 है, इनके सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 5 to 11। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कैग हो गया, यूपीएससी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़। एमरजेंसी प्रोविज़न है हमारा 352 से लेकर 360 तक एमरजेंसी प्रोविज़न है पार्ट 18 में। 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं। फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी अरेंजमेंट को देख लेते हैं। देयर आर 2 types ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, ओके। यूनाइटरी के जो देयर समथिंग लाइक यूनाइटरी में क्या हुआ? गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम इन विच अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोटल पावर ओवर ऑल ऑफ इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिविजन्स। फेडरलिज्म में क्या होता है? सिस्टम ऑफ पॉलिटी इन विच पावर इज डिवाइडेड, यहाँ पर पावर डिवाइडेड है सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में। यहाँ पर एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास सारी पावर है, मतलब केवल यूनियन जो है सेंटर पे, वहाँ पर सारी पावर एकदम कंजस्टेड है, सारी पावर वहीं पर है, और तो ऐसा है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूके जो है, अब ये एग्जांपल यहाँ पर यूके लिख लो और यहाँ पर लिख लो यूएस, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ये वाला मतलब इनका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनका यूनिटरी।
अब नाउ फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, और सिंगल गवर्नमेंट में क्या है, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके पास सारी पावर है, ठीक है। इनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो हॉरिजॉन्टल यही है ना कि आप ऐसे तीनों साथ में रखो, सारे स्टेट्स के बीच में जो पावर है वो सेम रहेगी, ठीक है। यूनियन जो है वो ऊपर हो गई, फिर सारे स्टेट्स हो गए, फिर लोकल हो गई, तो पावर ऐसे सबके पास में इक्वली है, बट यही है कि प्रिवेल करता है यूनियन लॉ, बिकॉज यू नो यूनियन वहाँ पर पार्लियामेंट है और दे टेक्स द मोस्ट इनिशिएटिव, मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव यू कैन से। ये सारी चीज़ें। सिंगल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटन और अनरिटन, ओके। नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है टोटल, ठीक है। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट में भी सुप्रीम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फैक्चुअल, यहाँ पर कैन बी, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, मे बी, कैन बी, ठीक है। और जुडिशरी हो गया, मे बी इंडिपेंडेंट और मे बी नॉट इंडिपेंडेंट। लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल और यूनिकैमरल, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डुअल पॉलिटी हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये तो रहेगा ही, बाई कैमरलिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं फेडरलिज्म का क्या क्या है। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जनरली फेडरल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट, जनरली फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, टीयर्स, ठीक है। टीयर्स हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर ईच टीयर हैज़ ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ। टीयर्स मतलब यही होगा, यूनियन का सब्जेक्ट अलग है, स्टेट का अलग है, ठीक है। और हमारे पास कॉन्करेंट अलग होता है। तो मतलब जो ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी, टीयर मतलब होता है लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो इनका अलग अलग पावर्स है और इनका पावर डिफाइंड है। जैसे ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है स्टेट के पास अपनी खुद की एक टैक्सिंग पावर होती है, वो टैक्स लेते हैं, ठीक है। और यूनियन के पास अलग होती है, और ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के पास, पंचायत के पास भी होती है टैक्स कलेक्ट करने की पावर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अब देख लो, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल। तो फंडामेंटल जो प्रोविजंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चेंज हो सकते, ठीक है। तो उसमें जो है अच्छा खासा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था ना, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट्स के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, वो बताएंगे उसमें बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, जो भी प्रोविजंस लिखे हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस को वाइड करके ये सारी चीज़ें बताते हैं। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अलग अलग लेवल, जो तीनों लेवल हैं, उनकी अलग अलग पावर्स कितनी है, तो वो भी बताता है, डिफाइन करता है। कौन करता है, कोर्ट्स। एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। जो रेवेन्यू है वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी तो है ही है, हमारी कंट्री तो इतनी डाइवर्स है, सभी को पता है। रीजनल है, कल्चरल है, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो यही है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट, यूनिटी को प्रमोट करने का ये भी फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यूनाइटेड रहें, ठीक है। अलग अलग, अगर केवल सेंटर एक्सरसाइज करेगी सारी पावर, तो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई पावर डिवीजन इज अ गुड सोल्यूशन है। फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म इज क्वाज़ी फेडरल टाइप, हैविंग बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म में पता है इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। अब यूनिटरी फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है इंडिया में। रेजिडेटरी पावर है विद सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडेटरी मतलब ऐसी चीज़ें जो ना यूनियन में है ना स्टेट में है, ठीक है। और कॉन्करेंट में भी नहीं है, तो ऐसी पावर्स जो चीज़ें वहाँ पर नहीं डिफाइंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, ठीक है। ऐसी नई नई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। स्टेट बाउंड्री alteration without their consent, single citizenship, all India services, post of governor, integrated audit by CAG, emergency provision, appointment of high court judges by president, article 1 union of state। तो ये सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, ये तो आप एक बार एग्जाम्पल ऐसे पढ़ लो तो याद रहता है। और फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखा था ऊपर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है 7th शेड्यूल में है हमारे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है हमारे पास, राज्यसभा वगैरह है। और अब देखते हैं मोर फीचर्स ऑफ यूनिटरी फीचर। मोर फीचर्स ऑफ यूनिटरी फीचर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। However, Supreme Court in SR Bommai case 1994 held that federalism is a basic structure and part of the Indian Constitution, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फेडरलिज्म को बताया था एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमें पता है केशवानंद भारती केस हुआ था,
1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी गई थी। नॉट डेफिनेशन नहीं दी गई थी, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ये जो है ये वॉलेट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कुछ भी अमेंडमेंट करो, ठीक है, जो भी आर्टिकल में अमेंडमेंट्स करने हैं वो सब करना करें आप, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच, बट बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी डेफिनेशन को वॉलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब हमने देखा कि ये देखो 3 टीयर्स, जो भी हमने देखा था 3 टीयर्स क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, पंचायत, ये सारी चीज़ें हो गई। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ये सारी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें। और ये पहले वाले लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ बनाती है, ठीक है, इन सबका काम यही होता है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, दे रन द गवर्नमेंट बेसिकली, दे आर द रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, और you can say dedicated towards the legislature as well. So executive is directly responsible to legislature, we know. And judiciary की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे इंटरप्रेट लॉज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डिस्प्यूट, इंश्योर नो आर्बिट्रेरीनेस, तो ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, ये तो हमें पता है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर्टिकुलर जो डेफिनेशन सेपरेशन ऑफ पावर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ था, ये मॉन्टेस्क्यू ने अपने एक वर्क में, अपनी एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी, वर्क था उनका स्पिरिट ऑफ लॉज 1948 में, उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट बियॉन्ड डेफिनेशन, हम पढ़ ही लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इज एन अप्रोच टू गवर्न अ स्टेट। अंडर इट, स्टेट्स गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ईच with separate independent powers and responsibilities, so that the power of one branch are not in conflict with those of the other branches, ठीक है। तो बैलेंस होता है between the 3 organs of the government, ठीक है। अब यहाँ पर there are some articles that is related to separation of power, 50, 121, 122, 194, 105। तो देखो 50 क्या है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव जो है सेपरेट रहेंगी। आर्टिकल 121, 122 किसके लिए है, जुडिशियल कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का होता है, वो पार्लियामेंट वाले डिस्कस नहीं करेंगे, ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेशन में, ठीक है। 361 क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी काम करते हैं, दे आर नॉट, वट एवर डिसीजन दे टेक, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, ओके। तो मतलब इंटरफियरेंस मना है, ना जुडिशरी जो है इंटरफियर कर सकती है पार्लियामेंट के वर्क में, ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, और ना ही पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी के ऑफिशियल वर्क्स में, ऑफिशियल जजमेंट्स में इंटरफियर कर सकती है, ठीक है। they can interfere but with certain reasonable grounds, okay। अब यहाँ देख लें, theoretically we may see that the doctrine of separation of powers is there in India but is only between the executive and the judiciary, क्योंकि मैं बताया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये लॉज बना रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक दूसरे से को रिलेटेड है, बट जुडिशरी इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर तो तीनों ऑर्गन्स के लिए होता है, बट हमें इन रियल टर्म्स वी कैन सी between only these two, executive and judiciary. The PM is the part of the union executive, yet it is the PM and its council of ministers who are the real executive, because the president has to act on aid and advice of the council of ministers. तो PM और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट तो इनके केवल एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। This Council of Ministers work in capacity of both the legislative and executive capacities, which goes against the doctrine of separation of power. तो ये सारी चीज़ें होंगी। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को इंटीग्रल पार्ट माना गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 का, उसमें कहा था सेपरेशन ऑफ पावर वाज लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया NJC एक्ट 2014 को, एज इट थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर रहनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और इस एक्ट में बेसिकली था क्या, यही सारी चीज़ें थी, मतलब लाइक कि जो जुडिशरी होती है, उनके जजेस जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है, तो उसमें कुछ अलग इन्वॉल्वमेंट्स थे, वो सब आप देख लेना। तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गन, तो दूसरा ऑर्गन जो है उसके लिए वहाँ पर है, मतलब उसको मैंडेट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस इज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच सेपरेट ब्रांचेस आर एम्पावर्ड टू प्रिवेंट एक्शंस बाय अदर ब्रांचेस एंड आर इंड्यूस्ड टू शेयर पावर, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस आर अप्लाइड प्राइमरली इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दे आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन ट्राइपार्टाइट गवर्नमेंट सच एज US, विच सेपरेट पावर अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो चेक्स ऑन जुडिशरी, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बट दे मे बी रिमूव्ड ओनली इफ दे आर इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट,
ठीक है। चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये बोल रहा है चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब जजेस के हाई कोर्ट और मतलब सुप्रीम जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंट होंगे वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू, लेकिन रिमूव किए जाएंगे केवल पार्लियामेंट के थ्रू। तो मतलब देख रहे हो आप, जुडिशरी को का रिमूवल जो है कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, तो सेम पीपल नहीं कर रहे हैं। तो मतलब चेक्स एंड बैलेंसेज है यहाँ पर, ठीक है। और चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पता है। और चेक्स बाय जुडिशरी और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव थ्रू द टूल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इट इज़ अ जुडिशियल कॉनोटेशन दैट वाज प्रोपाउंडेड इन द केशवानंद भारती केस 1973 वाला, ये है 24 अप्रैल 1973, ओके। 24 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट। थ्रू द judiciary put a limitation on the amending power of the parliament so that the basic structure of the constitution can't be amended under article 368। उन्होंने कहा था अंडर आर्टिकल 368 आप कोई भी प्रोविजन को अमेंड करो, कोई भी प्रोविजन देयर इज नॉट एज सच लिमिटेशन, बट कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी वॉयलेटेड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए करना है। कोर्ट हेल्ड दैट नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बियॉन्ड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड इवन विद द कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड एक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन बस बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करो। द पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करने का पावर है आपके पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता। द कोर्ट डिडंट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो भी डेफिनेशन को बहुत वाइड रख रहे हैं। तो एक वाइड डेफिनेशन जिसमें जो धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ धीरे धीरे प्रोविजंस जो है कंटिन्यूसली विद डिफरेंट अपकमिंग केसेस जो है उसमें अपडेटेड होते रहते हैं। सो बट ओनली लिस्टेड अ फ्यू प्रिंसिपल, तो हमेशा प्रिंसिपल जो है अपडेट होते रहते हैं एज बीइंग इट्स पार्ट। सेवरल सच प्रिंसिपल हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल SR बोमई, सेकुलरिज्म 1994, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, L चंद्रन कुमार केस। तो ये केसेस हैं जिनमें जो है इसमें जो है सेकुलरिज्म को इन्होंने लाया था, और इन दोनों में मतलब इस केस में जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लाया, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होती है, आप देखे होंगे कि मतलब कोई भी चीज़ जब अमेंड करता है, जब कोई भी प्रोविजन को अमेंड किया जाता है, तो उसमें देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी दैट इज बीन, मतलब जो उसमें एप्लीकेट की जाती है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, इफेक्टिव होती है, स्पेशल होती है। तो जैसे प्रोविजन होता है उसी हिसाब से किया जाता है। तो इट इज़ अ फंक्शन इंस्ट्रूमेंट यूज इन पार्लियामेंट टू कैरी आउट सेवरल बिजनेसेस लाइक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स एंड वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। दीज आर द थिंग्स, ओके। सिंपल मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूँ तो विच रिक्वायर नॉट लेस देन 50% ऑफ 50%, मतलब जितने जितने प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 50% बस, अगर वो इफ़ दे आर सपोर्टिंग तो वो जो है बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, अब एग्जांपल्स देख लीजिए। ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, फाइनेंशियल बिल के लिए होता है, एडजर्नमेंट के लिए होता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए होता है, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल रूल, सेंसर मोशन, सेंसर मोशन, और ये हो जाएगा पास बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें, दिस मीन नॉट लेस देन 50%, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है लाइक वी हैव 550 इतनी होती है ना टोटल स्ट्रेंथ, बट राइट नाउ वी हैव 545, ठीक है। तो 545 जो जितनी टोटल स्ट्रेंथ है ना उसका 50%, 50% उतना रहेगा तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वैकेंसीज एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसीज जो होती हैं उनको हटाने के बाद। तो दिस इज नीडेड टू रिमूवल ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस चेयरमैन। और स्पेशल मेजॉरिटी को देख लेते हैं, ये सबसे भयानक वाली मेजॉरिटी होती है भाई। इसमें तो कंसेंट चाहिए होता है, मतलब कंसेंट क्या, 2/3 मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट, जितने प्रेजेंट है उसके 2/3 मेंबर जो है वो वोट करें, ठीक है, वो अपनी सहमति दें, और जो है प्लस 50% ऑफ द टोटल, ठीक है। तो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। यूजर्स की बात करें तो आर्टिकल 249, 312 में सब यूज़ होता है। राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कराने की बात कर सकता है, ठीक है। नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आर्टिकल 368 में भी एप्लीकेबल होता है, जिसमें अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का प्रोविजंस है, ठीक है इसमें। और फिर इन बोथ हाउसेज आर्टिकल 169 है स्टेट असेंबली के लिए, क्रिएट या फिर अबॉलिश करेंगे क्या, विधान परिषद। विधान परिषद क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तुम्हें पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 स्टेट्स में है, ठीक है।
तो उनको बनाने या अबॉलिश करने के लिए भी हम स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। तो ये सब आप याद रख लो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, मतलब अबॉलिश और क्रिएट करने के लिए विधान परिषद को कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो रिक्वायर कंसेंट। जब स्टेट्स में जब स्टेट्स को ट्रांसफ़र करने की बात होती है वहाँ पर, या फिर स्टेट्स में कुछ लाइक ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर, तो वहाँ पर 50% ऑफ द स्टेट्स की भी सहमति, कंसेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसके बाद ये ऑन अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बिटवीन सेंटर, ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग एनी लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ऑन अमेंडमेंट इन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए भी होती है। आर्टिकल 368 इटसेल्फ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये सारी चीज़ें। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसके लिए होती है, दिस मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर क्या है कि 545 का 50%, ठीक है, जितनी वैकेंसीज रहे उनको हटा के, बट यहाँ पर 550 का टोटल 50%, यहाँ पर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस विदाउट सब्सट्रैक्टिंग वैकेंसीज, नॉट यूज अलोन, इट इज़ यूज विद एज अदर मेजॉरिटी। ठीक है। तो मोस्टली ये अदर मेजॉरिटी के साथ में यूज़ होता है, अकेले नहीं यूज़ होता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल थियोरीज क्या होती है, अब देख लेते हैं सबकी डेफिनेशन। लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू चूज, बिलीव, एक्ट ऑन देयर पोटेंशियल। इट इज एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट। It's a personal freedom that is granted to people by external authority. External authority example, liberty of thought, expression, belief, faith, worship. ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना। तो ये मतलब क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ। तो ये सब इन्होंने कहा है कि लिबर्टी जो है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कोई कॉन्स्ट्रेंट ना हो आपके पास, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। तो जब एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट होता है वो, मतलब किसी हमें प्रोविज़न के थ्रू दिया जा रहा है, स्टेट के थ्रू दिया जा रहा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज लिबर्टी। बट और फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम को देख लो आप, इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड फैसिलिटेशन टू एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस वट एवर दे वॉन्ट टू से। ठीक है, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे कैन इवन डेवलप देयर पोटेंशियल। सो इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट ये होता है, ये एक्सटर्नल होता है। Where one individual decide his own actions, it is the capability of individual to make decision without external control। यहाँ पर एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू है, ठीक है, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट है। अब यहाँ पर देख लो कि लिबर्टी जो है दो तरह की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती, मतलब क्या है, लिबर्टी फ्रॉम लॉ, सो इट्स नैरो इंटरप्रिटेशन, फोकसेस ऑन एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। मतलब जो गरीब है ना उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत लाइक जो पीपल जो रिच होते हैं और जो पुअर होते हैं उनके बीच में इंटरवीन करके उनको कुछ लिबर्टी देती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ठीक है, इट इज़ नोन एज लिबर्टी बाय लॉ। ठीक है, एंड इट्स वाइडर इंटरप्रिटेशन दैट इज नैरो एंड इट फोकसेस ऑन फैसिलिटेशन टू एनवायरमेंट डेवलपिंग फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टेट इंटरवीन्स एंड एक्सपैंड ह्यूमन चॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल रिच वर्सेस पुअर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हो गया। अब रिपब्लिक देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विद पीपल। तो जैसे हम बात करें तो इंडिया और यूके का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया यूके। इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, बट यूके रिपब्लिक नहीं है, नो, बिकॉज यहाँ पर जो हेड होता है वो इलेक्टेड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हेरिडिटरी प्रोविज़न चलता है ना, कि जनरेशनल जो प्रोविज़न चलता है कि वही हेड होगा, बट हमारे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, इलेक्टेड हो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, बट इलेक्टेड होना चाहिए। तो हेड शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली, इधर डायरेक्टली और आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल इंडिया बट नॉट यूके। ओके, इक्वालिटी की बात करें, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, अगर वहाँ पर उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जा रही है जो रिच हैं, तो वो इक्वालिटी होगा। एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी जा रही है फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सॉवरेन की बात करूँ, फ्रीडम ऑफ अ कंट्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो कॉमनवेल्थ की बात करें, सॉवरेन क्या है, आगे हम जो whatever वी वांट टू डू, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनली जो भी करना चाहते हैं, हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो होता है सॉवरेन। ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ में हम ऐड तो हुए हैं लेकिन आउट ऑफ आवर फ्री विल, तो हम खुद चाहते हैं इसलिए ऐड हुए हैं। जब भी हम चाहें वहाँ से अपने आप को मतलब मेंबरशिप को हटा सकते हैं, अपनी मेंबरशिप को। तो ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सॉवरेन कंट्री की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, फेथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है
कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हो, मतलब कि कोई एक ओन ना करे सारी चीज़ें, जो भी प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको कम्युनिटी ओनरशिप होना चाहिए वहाँ पर। सोशलिज्म की डेफिनेशन ये होती है। आबादी सेशन जो 1955 में हुआ था एनसी का, वहाँ पर सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को पहली बार अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था बेसिकली। अब यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, वो मिक्सड है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ जो एप्लीकेबल होता है, जो हमारे यहाँ का सोशलिज्म है, वो नेहरूवियन सोशलिज्म है, ठीक है। तो ये हो गया सोशलिज्म, मतलब ये होता है सोशल, तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, कोई एक इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर रहा है वो। सेकुलर की बात करूँ तो इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट एक्शन फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। सेकुलर मतलब वही कि लाइक किसी भी रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, या तो सारे रिलीजन को पैट्रोनाइज करो इक्वली, अदरवाइज रिलीजन को कोई वैल्यू मतलब डोंट फॉलो एनी रिलीजन, ओके, इधर डोंट फॉलो और पैट्रोनाइज एवरी रिलीजन इक्वली, ठीक है। तो वी पैट्रोनाइज ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है। सो नॉन थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, जो लोग मतलब रिलीजन को मानते हैं, लाइक दे डोंट गिव वैल्यू टू रिलीजन। सो बेसिकली रिलीजन को वैल्यू देना नहीं होता, बट किसी एक रिलीजन को ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो क्या है वी ये सारी चीज़ें हैं, और ये नॉट डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकुलर की डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर, बट ये प्रियम्बल में है, ठीक है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, बट इसके ये डिफाइंड नहीं है। डेमोक्रेटिक की बात करें, पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल। सो डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि पीपल जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथों में है, तो लोग जब चाहें गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, तो ये है सुप्रीम पावर, ठीक है। तो पीपल्स रूल जो होता है वही होते हैं डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट शुड बी ऑफ, फॉर एंड बाय द पीपल, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वही ऊपर वाली डेफिनेशन। फैमिनिस्ट की बात करें, फैमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वेमेन, ठीक है, ऐसे मैन एंड वेमेन हु बिलीव दैट मैनी ऑफ द इनइक्वालिटीज वी सी इन सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वेमेन आर नाइदर नेचुरल नॉन नेसेसरी। तो मतलब ना ही नेचुरल है, ना ही ज़रूरी है, ना ही अपने आप से आए हैं, ना ही ये ज़रूरी है, ये हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट है जो हमने लाया कि लाइक फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, वो वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, women's equality, men and women equality basically, and can be altered, और इसे बदला जा सकता है, सो दैट बोथ women and men कैन लीड फ्री एंड इक्वल लाइफ, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ जो होती है मोस्टली जो सोसाइटी होती है, मोस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड आर पैट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला है कि ये जो है नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही नेसेसरी कॉन्सेप्ट है, और इसे ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, सो दैट बोथ वुमेन एंड मेन कैन लीड देयर फ्री एंड इक्वल लाइफ। तो इक्वालिटी पे आप आए, ठीक है। ओके, सोशल जस्टिस की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थ्योरी which asserts that there are dimensions to the concept of justice beyond those embodied in the principles of civil or criminal law, economic supply and demand, और ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली बड़ी डेफिनेशन फालतू लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस क्या होता है, फंक्शंस इन ट्रिनिटी। सोशल में क्या है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो डीपीएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर, वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें होती हैं सोशली जस्टिस होती है, ठीक है, यही है, कुछ नहीं। इसमें राइट्स की बात करें, राइट्स यार जो भी मतलब कुछ ऐसे एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो हमारे राइट्स हैं। कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंटल राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं जो हमारे बर्थ से ही हमारे साथ होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। तो चलिए क्विकली ये देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, तो हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस evolution can be traced to many revolution act passed before Indian independence. These can be summarized into two heads. कंपनी रूल पहले था, तो ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में आ गए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंपनी रूल था पहले, फिर क्राउन रूल आया, ठीक है। कंपनी रूल कब से कब तक था, 1773 टू 1858। 1857 वाला जो रिवोल्ट था ना, वो इन दोनों के बीच में टर्निंग पॉइंट है। 1857 रिवोल्ट के बाद में जो है जो गवर्नमेंट है वो उसको मतलब गवर्नमेंट जो वहाँ पर कंपनी रूल था उसको एंड कर दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्राउन रूल आ गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। जो स्टार्टेड आफ्टर ब्रिटिश वॉज ग्रांटेड दीवानी राइट्स पोस्ट इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जब वहाँ पर लाइक जब बैटल हुई थी 1764 में, तो वहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, ठीक है। दे वॉन द बैटल, और वहीं से जो है बेसिकली स्टार्ट होता है ये जो कंपनी रूल था वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो इसमें क्या है, इसमें टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई हैं यही बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार टाइमलाइन। तो 1600 में क्या है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश एज ट्रेडर्स इन इंडिया। तो 1600 में ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया में आए थे।
1765 में क्या हुआ था, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू AIC बाय शाह आलम। शाह आलम ने दीवानी राइट्स दिया था। दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स मतलब टैक्स फ्री ट्रेड, यही मतलब कुछ ऐसे राइट थे जो कुछ कुछ एरियाज में दे दिए जाते थे बाय द रूलर्स, तो वही है दीवानी राइट्स, ठीक है। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और यहीं से कंपनी रूल स्टार्ट है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 33 में चार्टर एक्ट, 1853 में चार्टर एक्ट। ये सब चार्टर एक्ट्स हैं, इनके थ्रू सम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजन आते रहते थे, तो उसको हम आगे देख लेंगे जहाँ पर होगा अभी तो। और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। उसके बाद क्या होता है, क्राउन रूल, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल ले लेती है ना, तो वो है 1861 में। और 1861, 1892, 1909, इन तीनों में क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे 1861, 92, 1909 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब 1919 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। फिर 32 में कॉमनल अवार्ड आया था। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें तो 50% जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए गए हैं अप्रॉक्स 50%। एंड ये क्या है, 1947 की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। यहाँ से हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, तो एक्ट्स जो है ना उनके क्या क्या प्रोविजन है, जैसे मैंने बोला ना अभी एक्ट्स में क्या क्या है वो सब पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या एक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट की अगर मैं बात करूँ 1773 वाला जो है, वहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनके अंडर में अब गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को कर दिया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बिगनिंग ऐसी होती है, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उनको लाया जाता है इनटू एग्जिस्टेंस, एंड दे उनका काम क्या होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो थे इंडिया में, उन सबको रिपोर्ट करना। कहाँ पर? वहाँ पर यूके, यूरोपियन गवर्नमेंट में, ठीक है। अब बात करें 1974 में, तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये क्रिएट होता है एट फोर्ट विलियम्स, ठीक है। बहुत कम पावर्स रहती हैं वहाँ पर, मिनिमल पावर्स के साथ में। और वॉरेन हेस्टिंग ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर पिच इंडिया एक्ट जो सेकंड एक्ट आया था, उसमें डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया था, जिसमें COD जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कमर्शियल फंक्शंस दिए गए थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाइक एक और एस्टैब्लिश किया गया था, उनको पॉलिटिकल फंक्शंस दिए गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है बेसिकली, लाइक डुअल सिस्टम डायरकी। वो कंपनी की टेरिटरी वर कॉल्ड, पहली बार जो कंपनीज की जो टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया था, ठीक है। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एम्पावर्ड, दस गिविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो एंडेड EIC मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ना, स्टार्टिंग में उन्होंने चार्टर लिया था वहाँ से कि हमारी मोनोपोली है कि हम इंडिया वगैरह में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इंडिया और जो उसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने अपनी ले रखी थी, मतलब मोनोपोली ले रखी थी। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट तो इन्होंने एंड कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट टी एंड ओपियम, ये छोड़ के तो उन्होंने बाकी सब एंड कर दिया। तो मतलब कंपनी निकलो अब यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी, वो टैक्सेस वगैरह यहाँ से निकालेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, एलोकेशन ऑफ एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव्स। तो मतलब एजुकेशन के प्रमोशन के लिए भी जो है इसमें ₹1 लाख जो है एलोकेट किया गया था, किसमें? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब 1833 में क्या हुआ था, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको GG ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले वो कौन थे गवर्नर जनरल? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं अदर नेम्स की बात करें तो यहाँ पर इसी एक्ट को ना, इस एक्ट को 1833 वाले को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिमूव्ड, ठीक है। फील्ड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन उन्होंने लाने की सोची थी, बट दैट वाज फेल्ड, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर फेल्ड अटेम्प्ट। सो सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ओपन कंपटीशन मतलब सबके लिए ओपन हो, इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लॉ कमीशन की बात करूँ तो अंडर लॉर्ड मैकॉले टू कोडिफाई इंडियन लॉज बनाने के लिए लॉ कमीशन लाया गया था, ठीक है। एंडेड द कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से एंड कर दी गई थी, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है। टी में, चाय में ट्रेड करना है उनको, चाय में कर सकते थे वो, इसमें मोनोपोली थी उनकी, और चाइना के साथ ट्रेड करने में उनकी मोनोपोली थी, ठीक है। तो वो सभी एंड कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अभी क्या है, चार्टर एक्ट 1853
फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज सेपरेटेड। तो जो ये लॉ बनाने वाली पावर और इम्प्लीमेंट करने वाली पावर को सेपरेट किया गया। दिस इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। सो यही है। इंडियंस वर अलाउड इन कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज। ठीक है। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 का रिवोल्ट हो चुका है 58 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफ़र कर दिया जो भी कंपनी की टेरिटरीज जो भी थी, कंपनी की मोनोपोली या फिर जो भी गवर्नेंस था, उनको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वॉज डेजिग्नेटेड एज वाइस रॉय। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या बने, गवर्नर से गवर्नर जनरल बने ऑफ बंगाल। ठीक है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। अब जी से क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल से वाइस रॉय बन गए। तो वाइस रॉय पहले सबसे पहले कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एसओएस क्या है, एसओएस है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। वो इस्टेब्लिश किया गया, अबॉलिश किया गया। बीओसी एंड सीओडी इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया एंड दस एंडिंग द डुअल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 का, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन एज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रीस्टोर्ड। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज की, उसको रिस्टोर किया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर इनिशिएट हुआ, यू कैन से, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर के पास सारी पावर्स है, लेकिन अगर इनको भी पावर्स दी जा रही है बॉम्बे एंड मद्रास को भी, तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम्स एंड ऑर्डिनेंसेस पावर ऑफ द वाइस रॉय। ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश एट बंगाल, पंजाब एंड NWFP। ठीक है। अब नाउ जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, इंक्रीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को भी इंक्रीज किया गया। फॉर एग्जांपल पावर, अब इसमें बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर 1909 को मॉर्लेम इंटू रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें इंक्रीज साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। सेपरेट मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने मेंबर्स होते थे उनकी जितने मेंबर्स थे, मान लो सपोज दैट 7 to 8 रहे होंगे उस टाइम, तो द नंबर जो है, नंबर हैज़ बिन इंक्रीज्ड सो दैट द इंडियन पार्टिसिपेशन कैन ऑल्सो हैपन। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया गया था। एंड लार्ज डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बजट पे मतलब सप्लीमेंट्री, यहाँ पर बजट को डिस्कस कर सकते थे लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। ठीक है। यहाँ पर पावर दे दी गई कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड रेजोल्यूशंस भी वो बजट के लिए ले सकते हैं। ठीक है। रेजोल्यूशन भी फॉर्म कर सकते हैं। सो इंडियंस एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पर मैंने बताया ना कि नंबर इंक्रीज किया गया, सो एनलार्ज्ड, सो यहाँ पर इंक्रीज साइज बढ़ा है तो इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्या है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। सो क्या आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, प्रोविंशियल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है। डिवीजन ऑफ द ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, डायरकी क्या है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पावर को डिफाइन करा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो कुछ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो शेयर्ड पावर्स थी, बट रिजर्व जो है वो रिजर्व था फॉर द सेंटर। बाईकेमरलिज्म एट सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस, सेंटर पे बाईकेमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था इस एक्ट के थ्रू, और डायरकी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई थी। For the first time, direct election, limited franchisee, extended communal representation, Sikh Indian Christians, ये सारी चीज़ें, provided for establishment of a public service commission and a statutory commission. अब 1935, very important act, establishment of All India Federation, comprising of provinces and princely states. 3 लिस्ट थी इसमें, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, जो भी हमारे 7th शेड्यूल में बेसिकली ना। एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल पे इन्होंने एबॉलिश कर दिया। ठीक है। यहाँ पर डायरकी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना प्रोविंशियल लेवल पे, उसको एबॉलिश कर दिया और इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, सेंट्रल लेवल पे। तो यही तो डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, यही देखना होता है दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। बाईकेमरलिज्म एट प्रोविंशियल लेवल, और यहाँ पर क्या था, बाईकेमरलिज्म सेंटर पे था, यहाँ पर प्रोविंशियल पे आ गया। एक्सटेंडेड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उसको एक्सटेंड किया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन लेवल, अब ये सभी जो है वोटिंग कर सकते थे, ये सारी चीज़ें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935, 1 अप्रैल।
सबको पता होगा, और फेडरल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यहाँ पर।